13 साल हो गया है रिटेल ज्वेलरी को, और आई थिंक दे आर रियली द प्रोपोनेंट्स ऑफ सेलिब्रेटिंग द रियल क्राफ्ट्समैनशिप ऑफ इंडियन ज्वेलरी। एंड जो इस साल का है वो डायमंड्स, एमरल्ड्स और रूबीज़ है, और it's obviously precious jewels. And I've been able to see, because I was judging a section for the awards, I saw the kind of collection that came in, and it's absolutely stunning, the kind of craftsmanship that goes out of India, and the fact that retail jewelry is actually celebrating that and awarding the people who are behind creating. I'm actually wearing one of their one of the pieces from here. So yeah, it's great, and all women love jewelry. These days men also love jewelry. So it's amazing. I mean, if you can afford it, yeah, who wouldn't want a good piece of jewelry? Personally, I like a lot of silver, and I like a lot of chunky silver, or I like dainty things. I also like like things like this, which is not too over the top. But yeah, I think silver is, and kundan is something that I absolutely love. Something about your attire. You know what? Wait. I've forgotten the designer's name. 1 second. Aman, ask Shrija who the designer is now. I'm so sorry. But yeah, I love wearing saris, so I really wanted to wear a sari today. Thank you. Thank you. Well, this is I come back actually after 4 years for the same awards, and I've been on the jury the second time. I see such a huge difference in the way the designs have evolved and the quality of the work that I see. So I'm very excited to see what all is winning today, and yeah, very excited. किस तरह की ज्वेलरी हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी? Sorry? किस टाइप ज्वेलरी? यहाँ सब टाइप की ज्वेलरी आपको देखने को मिलेगी. देयर इज़ डायमंड्स, देयर इज़ गोल्ड, देयर इज़ वेडिंग ज्वेलरी, देयर इज़ इनोवेटिव ज्वेलरी, देयर इज़ like work jewelry. There's so much. ठीक है? मेरा बर्थडे, हैप्पी बर्थडे संजय बाबा और मैं. सेम डे, सेम टू सेम. संजय बाबा और मैं. Everybody pause. Yo. पता नहीं, आपको देख लो. ब्लिंग ब्लिंग. रैपर्स तो बहुत ज्वेलरी वैसे भी अप्रिशिएट करते हैं. Depends how much they give us free stuff, right? Yo, we bring jewelry alive. But anyway, thank you to these guys for bringing us. Your energy level is always high. What is that? Yeah. मैं इतनी आज टायर्ड हूँ. हमारी मिक्सटेप
2 अगस्त को आ रही है. Apple Music is promoting us. I'm so happy. इस वक्त मैं इतनी खुश हूँ ना, मेरे बर्थडे पे और इससे बेटर नहीं मिल सकता है ना. हाँ, of course, And how do you perfect. new projects you're working with? Yeah, welcome the Rising Mixtape Volume 1. 30 Indian artists from everywhere. अगर अक्ल है तो जाके सीखो. हमको मत बोलो तुम लोग क्या कर रहे हो. आजकल का जर्नलिस्ट नहीं होते, कुछ सीखते भी नहीं है. मैं बोल रही हूँ, इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग, आर्टिस्ट को क्यों ब्लेम करते हो यार. जाके सीखो. बाहर हो क्या रहा है. तुम्हारे पास फ़ोन है ना, इंटरनेट, जाके देखो, है ना. हाँ, For real, yeah. it's everywhere. Yeah. My home girls. Yeah. हम कुछ बोले? Please buy this album, Mixtape Volume 1. If you love hip hop, if you love Indians, please buy Mixtape Volume 1. It's called The Rising. Rising. Prap, 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 prap. Shall we go? Boom boom. Yeah, Yep. we need to get drinks. मैं एक्चुअली काफ़ी सिंपल ज्वेलरी पहनना पसंद करती हूँ. आई लव टर्कोइज स्टोन्स एंड आई डू लाइक सैफायर्स एज वेल. मुझे बताया गया कि मेरा बर्थ स्टोन सैफायर है, लेकिन मैं टर्कोइज पसंद करती हूँ. सो या आई लाइक टू वेयर सिंपल पीसेस ऑफ ज्वेलरी. What do you feel when a woman wears jewelry, उसका जो ब्यूटी फैक्टर है, जो ब्यूटी क्वोशिएंट है, वो ज़्यादा इंक्रीज होता है? What do you have to say about it? हाँ, खास आई थिंक ऑन सर्टन ओकेजन्स, स्पेशली जब किसी की शादी हो रही है या इफ़ यू गोइंग आउट फॉर फेस्टिवल. और मुझे एक्चुअली काफ़ी स्पेशल लगता है जब मैं ट्रैवल करती हूँ और मैं ख़ास इंडियन डिज़ाइन पहनती हूँ और कोई आके मुझे कहता है कि यू नो बिकॉज इट्स सो यूनिक इंडियन ज्वेलरी एंड द क्राफ्टमैनशिप इज़ सो यूनिक एज वेल. तो तब मुझे बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि इट रियली स्टैंड्स आउट. And sir, इसको इसमें काम करने के बाद फ्यूचर प्रोजेक्ट्स? तो मेरा पहला वेब सीरीज़ अभी अमेज़ॉन प्राइम पर रिलीज़ हो गया है और मेरा दूसरा वेब सीरीज़ वायाकॉम पे रिलीज़ होने वाली है और मेरा तीसरा वेब सीरीज़ नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ होने वाली है. सो आई थिंक इट्स web series seem to be my thing to do for now, and there are a couple of films in the project in the pipelines as well, which I can't talk about just yet. Thank you. Hi. मैम, प्योरिटी ज्वेलरी अवार्ड से आप कितनी शौकीन थी ज्वेलरी की और किस तरह ज्वेलरी पहनना पसंद करते हैं? मैं बहुत सिंपल ज्वेलरी भी पसंद करती हूँ और जब कोई ओकेजन हो तो इलेबरेट ज्वेलरी भी बहुत पसंद करती हूँ. आई फील दैट इंडियन वुमन का और ज्वेलरी का बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहता है और हमेशा रहेगा क्योंकि इंडियन वुमन हमेशा अपनी जो शादी होती है उनकी तो एक वो स्पेशल कनेक्शन रहता है और उनके लिए वो जो ज्वेलरी पहनती है वो एक सिंबल होता है. तो वो सिंबल होता है ऑस्पिशियस होता है. तो उसके लिए इंडियन वुमेन हमेशा ज्वेलरी पहनती है और वो ऑस्पिशियस सिंबल. अपनी लाइफ टाइम में आपको काफ़ी सारे मतलब गिफ्ट के तौर पर ज्वेलरी, ऐसा कोई मेमोरेबल ज्वेलरी गिफ्ट है जो आपको लगता है कि काफ़ी आपके क्लोज है इमोशनली? मेरे पास ये छोटी सी बालियाँ हैं जो छोटे छोटे डायमंड्स हैं उसमें बहुत छोटी सी बालियाँ एकदम छोटी सी जो मैं स्कूल से पहनती हुई आई हूँ और वो अब तक मेरे पास है और मैं हमेशा पहनती हूँ. मेरी माँ ने बनाई है. There are many actors working in film and television कम बैक कर रही हैं. आपका कैसा प्लानिंग है? Are you looking forward to working in film?
मेरे हिसाब से कोई कमबैक करता नहीं है. वंस एन एक्ट्रेस ऑलवेज एन एक्ट्रेस. जब चाहे कुछ अच्छा अगर रोल कोई पसंद आए या कुछ पसंद आए तो कर लेती हैं. ऐसे मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कमबैक करती है. तो मुझे वो समझ में नहीं आती है. आई एम पैशनेट अबाउट वट एवर आई हैव डन, वेदर इट्स मॉडलिंग, वेदर इट्स एक्टिंग, वेदर इट्स photo sessions, whether it's talking to you all. I'm always passionate about all this. Thank you. Thank you. Thank you.
वो काफ़ी चल गई, रेटिंग्स में आए हैं, अभी जितना एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छा था। लेकिन नहीं, एक्चुअली अब सभी लोग इस मीडियम में आएंगे। मैं हमेशा दूरदर्शी आई थिंक ऑफ द फ्यूचर। सिनेमा आजकल आप देख ही रहे हैं एक रिसेशन के फेज़ में है, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में भी नहीं चल रही हैं, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि एक्सेसिबिलिटी, स्क्रीन्स का कम होना, टैक्सेस का ज़्यादा होना, टिकट कॉस्ट इतनी बढ़ गई है कि आम आदमी के लिए उसे अफोर्ड करना मुश्किल है, एग्जिबिटर टैक्स इतना ज़्यादा है, और ये सब देखते हुए पीएनए का कॉस्ट इतना ज़्यादा, इतने बॉटल नेक्स है सिनेमा के लिए। सिनेमा को थ्राइव करने के लिए अभी बहुत मुश्किल है, और मुझे नहीं लगता इतना सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से फ़िलहाल मिल रहा है, क्योंकि टैक्सेशन बढ़ गई, जीएसटी के बाद टिकट प्राइसेस और भी एक्सपेंसिव हो गई हैं, सिंगल स्क्रीन्स बंद होते जा रहे हैं। इन सब वजहों की वजह से सिनेमा अभी सफ़र कर रहा है। इसलिए जो वेब का कंटेंट है, क्योंकि वो सबके लिए एक्सेसिबल, सब फ़ोन पे देख सकते हैं, टीवी पे देख सकते हैं, उसमें एक डेमोक्रेसी है, लोग उसे पसंद कर रहे हैं। तो इसी वजह से मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जैसे अमेरिका में हुआ, हॉलीवुड में जब ये फेज़ हॉलीवुड में आया था 4 साल पहले, तो नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम, हुलू, ये सारे फॉर्मेट्स वहाँ पे अभी टीवी से ज़्यादा चलते हैं। वहाँ केबल टीवी ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। ये सारे फॉर्मेट्स ही एंटरटेनमेंट है जो लोग कंज्यूम करते हैं। मुझे लगता है यहाँ भी ऐसा होने वाला है। ठीक है, थैंक्स, बाय।